Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. In the blanks. Number 1. Dash is a vast country with diverse geographical and culture. Answer is India. India is a vast country with diverse geography and culture. Number 2. Each period of dash had a distinct influence on the lives of people. Answer is history. Each period of history had a distinct influence on the lives of people. 3. The UN has declared 21st May as dash. Answer is World Day for Culture, Diversity, for Dialogue and Development. The UN has declared 21st May as World Day for Culture, Diversity, for Dialogue and Development. तो UN मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने 21 मई को वर्ल्ड डे माना है, जिसमें हम एक दूसरे के कल्चर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देते हैं और उसका डेवलपमेंट के लिए हम जो है सोचते हैं. नंबर 4. रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल एंड रिचुअल्स आर कॉल्ड डैश. आंसर इज कल्चर. तो अलग अलग धर्म, भाषाएं, फूड, फेस्टिवल और रिचुअल्स यानी कि रिलीजियस सेरेमनी, ये सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कल्चर. ओके. Fill in the blanks with the correct answer. Number 1. The phrase unity in diversity was coined by dash. Option A. Pandit Nehru, B. Sardar Patel, C. Dr. B.R. Ambedkar. Answer is Pandit Nehru. The phrase united in diversity was coined by Pandit Nehru. Number 2. Victoria Memorial in Kolkata is an example of the architecture style of the A. Portuguese, B. British, C. Mughals, D. French. Answer is French. Victoria Memorial in Kolkata is an example of the architectural style of the French. आर्किटेक्चर मतलब के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उसके जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको कहते हैं आर्किटेक्ट. नंबर 3. स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड. नंबर A. आर्टिस्टिक स्टेट. नंबर B. कल्चरल स्टेट. नंबर C. लिंग्विस्टिक स्टेट. नंबर D. डाइवर्स स्टेट. आंसर इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट. तो भाषा के आधार पर जो स्टेट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट. नंबर 4. चोलो एंड केडिया आर एग्जाम्पल ऑफ मैंस ट्रेडिशनल क्लोथ फ्रॉम. तो चोलो और केडिया कौन से स्टेट के मैन का ड्रेस है? A. असम, B. गुजरात, C. अरुणाचल प्रदेश एंड D. राजस्थान. आंसर इज गुजरात. चोलो and Korea are example of menswear traditional clothing from Gujarat. In one word, a cold desert of India. Answer is Ladakh. Number 2. A language spoken in Kerala, Malayalam. Question 3. This is the newest state in India. Answer is Telangana. Number 4. The world famous Rath Yatra take place in this state. Answer is Orissa. Number 5. A hot desert of India. Answer is Thar. Next, 7.
a state in which the Michael Hill are situated? Answer is Uttar Pradesh. Number 8. Lofty and snow-capped mountain ranges in the northern part of India. तो नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ इंडिया में जो बहुत ही ऊंचा और स्नो से कवर्ड है माउंटेन, वो कौन सा है? हिमालयास. 9. द स्टेट विच इज़ कॉल्ड द होम ऑफ क्लाउड. कौन से स्टेट को बादलों का घर कहते हैं? आंसर इज मेघालय. डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी? आंसर, a range of many things or people that are very different from each other is called diversity. Our societies, community, neighborhood, and classroom are diverse because people from different parts of the world live together in single community. They all speak different languages, wear different clothes, and follow different religion. India is called a land with unity in diversity. Explain in 2 points. Now, पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी. अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी 2 बातें हैं जो अलग होते हुए भी हम एक हैं. ओके. द डाइवर्सिटी of India has always been seen as a source of its strength. वो अलग है तो भी वे उनकी ताकत है. एक होकर वे अपनी ताकत बनाते हैं. Despite the varieties of culture, India remain a united country. अलग अलग होते हुए भी वह एक कंट्री बनकर रहते हैं. We take part in different culture, respect them and consider them a part with each other. और हम एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के पार्ट हिस्सा बन के रहते हैं. People from diverse group identify themselves as citizen of India. और अलग अलग ग्रुप के अलग अलग रिलीजन के होने के बाद भी वे अपने आप को इंडिया के सिटीज़न बताते हैं. क्वेश्चन 3. सिलेक्ट एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड ब्रिंग आउट द डाइवर्सिटी बिटवीन दैम विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल्स. तो गुजरात इंडिया के कोई भी 2 स्टेट लेकर उनके बीच में जो डाइवर्सिटी जो डिफरेंस है वो आपको 2 पॉइंट में बताना है. दोनों स्टेट के 2-2 पॉइंट बताने हैं. ओके. पॉइंट नंबर 1 गुजरात. पॉइंट नंबर 1 गुजरात एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है क्योंकि गुजरात का कोस्ट है सी कोस्ट से घिरा हुआ है. 3 तरफ से सी कोस्ट है, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंडी भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है, मॉडरेट क्लाइमेट है. नाउ पॉइंट नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश. द अरुणाचल प्रदेश रिसीव्ड हैवी रेनफॉल. तो जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे बहुत ही हैवी जो है रेनफॉल होता है. नाउ पॉइंट नंबर 2 मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेजर्ट प्लेन्स, salt marshes and wetland made up the topography of गुजरात. तो अभी गुजरात की लैंड को अगर हम देखें वहाँ पे क्या क्या है, तो कहीं पे फॉरेस्ट हैं, तो कहीं पे नॉर्थ की तरफ देखें, गुजरात के नॉर्थ की तरफ देखें तो डेजर्ट हैं. तो जहाँ पे सी कोस्ट है वहाँ पे साथ साथ आपको सॉल्ट से भरे हुए मैदान भी, पानी सूख जाता है तो उस पानी से नमक बन जाता है और समुद्र के किनारे के आसपास जो हैं हमें सॉल्ट मैर्शेस भी देखने को मिलते हैं, वेटलैंड भी देखने को मिलती है. इस तरह से यहाँ पे जंगल भी हैं, तो डेजर्ट भी हैं, तो समुंदर का किनारा भी है.
तो अलग अलग हमें टॉपोग्राफी देखने को मिलती है गुजरात में। सेकेंड पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हैज़ डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पे हैवी रेन है तो फॉरेस्ट भी बहुत ही डेंस है, घना है। विच आर होम टू अबाउट 5000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। 5000 जितनी हमें प्लांट की अलग अलग जातियाँ देखने को मिलती है। एंड 500 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और साथ साथ में हमें 500 के करीब बर्ड्स और रेप्टाइल भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश अलग अलग दो स्टेट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, व्हाट डू दे मार्क। अब यहाँ पे आपको गुजरात में कौन से फेस्टिवल मनाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में कौन से फेस्टिवल मनाते हैं। ओके, गुजरात, नवरात्रि इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेट विथ डांडिया रास डांस। तो यहाँ पे नवरात्रि है वो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। सेकेंड, द इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी। तो इस तरह से यहाँ पे उत्तरायण के दिन 14 जनवरी के दिन इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे दूसरे देशों के लोग भी काइट फ्लाइंग के लिए आते हैं। नाउ अरुणाचल प्रदेश, लोसर इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो लोसर है वो उनका मेन फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेट एज द न्यू ईयर, और वो उनका न्यू ईयर भी माना जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, व्हाट डू दे मार्क, मतलब ये बताता है कि हम अलग अलग कल्चर के हैं तो भी हम क्या हैं, एक हैं। ये हमें समझ में आता है या समझाया जाता है। आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। नंबर 1, explain geographical diversity in India. Answer, there are 6 physical divisions in India and each of them contribute to the geographical diversity of the country. तो यहाँ पे इंडिया में हमें अलग अलग 6 तरह के फिज़िकल यानी कि आउटलुक जो होता है, कहीं पे डेजर्ट है तो कहीं पे माउंटेन है, उसको हम लोग कहते हैं फिज़िकल आउटलुक। तो ये 6 तरह के मेनली देखने को मिलते हैं इंडिया में। दिस डिवीज़न आर द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्थ में माउंटेन है। नॉर्दर्न प्लेन, इंडिया के नॉर्थ में प्लेन यानी मैदान भी है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो वेस्ट की तरफ इंडिया का डेजर्ट भी है। पेनिसुला यानी कि 3 तरफ से पानी से जो घिरी हुई होती जगह उसको हम कहते हैं पेनिसुला। तो इंडिया के ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में हमें 3 तरफ कोस्टल एरिया देखने को मिलते हैं, उसको हम पेनिसुला कहते हैं। प्लेटू, कोस्टल प्लेन यानी कि समुद्र का किनारा, एंड द आइलैंड। तो इस तरह से हमें इंडिया के आसपास आइलैंड भी देखने को मिलते हैं। तो 6 तरह की फिज़िकल डिवीज़न देखने को मिलता है। द फर्टाइल कोस्टल प्लेन एंड द घाट along the coastline of India have attract trade who come for spice such as pepper and cardamom since the ancient time. इस तरह से इंडिया के कोस्टल प्लेन से दूसरे कंट्री के साथ स्पीसीज यानी कि मसालों के बिजनेस भी होते थे। द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी लीड टू डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन। इस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन डिवीज़न अलग अलग हैं तो यहाँ पे क्लाइमेट भी अलग है। फ्लोरा एंड फ्यूना
मतलब यहाँ की जो वनस्पति हैं, एनिमल्स हैं, वो भी आपको अलग देखने को मिलेंगे। फ्लोरा, फ्यूना एंड वे ऑफ लाइफ। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट फूड हैबिट, cloth, occupation, and custom influenced by the region and the climatic condition of the place। और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो है उनके ऑक्यूपेशन, उनके कस्टम, उनके फूड, उनके क्लोथ आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। डिफरेंट रूलर्स जो आए उन्होंने अलग अलग कल्चर का भी इन्फ्लुएंस किया और उनका आर्किटेक्ट भी हमें अलग अलग देखने को मिला। क्वेश्चन 2, सजेस्ट एनी 2 ways in which we can preserve the diversity of this country। यानी कि हम अलग अलग हैं तो भी हम एक हैं, उसको हमें कैसे बनाए रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, उसके लिए आपको जो है 2 बातें बतानी है। नंबर 1, डेवलपिंग एन अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी एंड गारंटिंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड इंक्लूशन फॉर ऑल इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग होते हैं, अलग अलग हैं, तो भी हमें जो है एक दूसरे के लिए मान सम्मान होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए। सबके अपने अपने अलग अलग धर्म है, रीति रिवाज है, तो सबके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए और हमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए। और साथ साथ में लोगों को, हर एक धर्म, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके मिलने चाहिए, तक मिलनी चाहिए और उनका जो है हर चीज़ में समावेश भी होना चाहिए। तो ये प्रोसेस तो चालू ही है। दूसरा, स्कूल कैरिकुलम शुड हैव मोर एम्फेसाइज on our rich culture diversity to develop sense of pride among future civilization। और स्कूल में बच्चों को अभी से ही जो है हमारा रिच कल्चर है इंडिया का, अलग होते हुए भी हम एक है, इस बात के ऊपर ज़्यादा भार देना चाहिए और उनका जो है उनको समझ आनी चाहिए कि हमें इस बात पे गर्व करना चाहिए। तो ये आने वाली सिटीज़न को, आने वाले बच्चों को ये इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम या पाठ्य पुस्तक, उनकी पुस्तकों में इस तरह से उनके पाठ होकर उन्हें ये समझ देनी चाहिए। ए शॉर्ट नोट, इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ। वी सी डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, festival, eating food habits, clothing, custom, and beliefs. Even though we live in one society and have influence of diversity. Diversity gives many benefits in our life. Diversity adds variety in our life. We eat different food, celebrate different festival of different religion together. We learn to understand and respect different culture. We learn to think from different angle because of diversity. In this way, we also believe in secular स्टेट, सेक्युलर कंट्री ऑल्सो। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलती है इंडिया में, उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो डाइवर्सिटी हम किस तरह से अलग है वो तो आपने देखा ही कि अलग लैंग्वेज है, फेस्टिवल है, फूड हैबिट है, क्लोथिंग है।
तो उससे हमें क्या असर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं। इससे एक दूसरे की धर्म की, भाषा की और सारी चीज़ों की असर हम पे भी पड़ती है। और इसीलिए हम अलग अलग फूड भी खाते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों के, उनकी भाषाओं के जो है कपड़े या रीति रिवाज, उसको भी हम फॉलो करते हैं समय के अनुसार। फेस्टिवल आते हैं तो वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से उनकी असर हमारे पे पड़ती है। वी लर्न टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर, और इस तरह से हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देना सीखते हैं। उनके कल्चर, उनके रीति रिवाज, उनके ट्रेडिशन को भी हम समझते हैं। तो इस तरह से वी लर्न टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल, और अलग अलग नज़रिए से हम सारे धर्म को समझते हैं और उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। और हमारे में एक सेक्युलर जो है बिलीफ, सब धर्म एक समान है, वो मान्यता, वो विश्वास भी हमारे में आता है।